Hello everyone, this is Dr. Vandana Gulati and today we will discuss about warts. Warts इन्हें हम वेरियुके या मस्से भी कहते हैं. Warts are rough, usually skin colored bumps or growths on the skin or the mucous membranes of a person. Warts non-cancerous या benign growths हैं, which means they cannot turn into cancer. Warts can affect anyone. That is, warts can affect males or females, or warts can affect an adult or a child. Warts body के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं. Now what causes these warts? Warts are caused by a virus named human papilloma virus. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में HPV भी कहते हैं या वॉट वायरस भी कहते हैं. And the source of infection is another infected person. ये वायरस एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रांसफर होता है बाय डायरेक्ट एंड क्लोज कॉन्टैक्ट, which means that human papilloma virus is contagious, but it has a very low infectivity rate. इसका मतलब है कि अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से आपका एक कैजुअल कांटेक्ट होता है तो आपको वॉर्ट्स डेवलप होने के चांसेस कम रहते हैं. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है फ्रॉम अ वेरी माइन्यूट कट और माइक्रोस्कोपिक इंजरी. इट एंटर्स through the outer layer of the skin, which is the epidermis, through a very minute cut, as I told you. And once it enters the skin, it causes rapid growth of the cells in the epidermis, which results in the formation of a wart. Now, how does this virus spreads? ये वायरस एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक कैसे पहुंचता है? द वेरी फर्स्ट रीजन इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. सेकेंड रीजन इज कि हम इन्फेक्टेड पर्सन की बिलोंगिंग्स के टच में आए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उनके यूज किए हुए टॉवल्स यूज करते हैं, उनके यूज किए हुए कोम्स यूज करते हैं, शेविंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, या किसी भी ऐसे सरफेस को टच करते हैं जो वायरस से कंटामिनेटेड है, फॉर एग्जाम्पल डोर नॉब्स. थर्ड इज द स्प्रेड ऑफ जेनाइटल वॉर्ट्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, विच मीन्स कि जेनाइटल वॉर्ट्स जो हैं वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. फोर्थ रीजन है लो इम्यूनिटी. जिन लोगों की इम्यूनिटी किसी ना किसी डिजीज की वजह से लो होती है, उन्हें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जल्दी इन्फेक्ट कर सकता है और वॉर्ट्स डेवलप हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल हैविंग हॉजकिंस डिजीज, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, malignant lymphomas, etc. Now, who is more prone to get warts? Children are usually more prone to get warts because of the repeated injuries children usually get, as ये वायरस small microscopic cuts से body में enter करता है. Now we will discuss about the symptoms of the warts. Clinically, warts are asymptomatic, but in a few cases they can cause itching. They can be painful like in plantar warts, or in a very rare cases they can also cause bleeding.
Warts can also grow in size, and this is usually seen in cases of genital warts. Warts can affect any part of the body, that is, the scalp, face, neck, axilla or underarms, hands, feet, or the genitals of a person. Warts बहुत तरह के होते हैं. Let us discuss about the various types of warts. Number 1 are the common warts, जिन्हें हम वेरुका वल्गैरिस भी कहते हैं. कॉमन वॉर्ट्स बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, बट दे आर यूजुअली सीन ऑन द डॉर्सम ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स. कॉमन वॉर्ट्स नॉर्मली स्किन कलर के होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, एंड इफ वी टच दीज वॉर्ट्स दे आर यूजुअली फर्म इन देयर फील. सेकेंड आर द प्लेन वॉर्ट्स, जिन्हें हम वेरुका प्लाना भी कहते हैं. दे आर usually skin colored and they are slightly raised from the skin surface with a flat top. They are usually seen on the face and the dorsum of hands. Third is the filiform warts. These are finger-like projections with irregular surface. और ये सबसे ज़्यादा पेशेंट के स्कैल्प पे देखे जाते हैं. But they can also affect the neck and the face of a person. Fourth category is the plantar warts. ये normally patients के soles में होते हैं. They can be painful at times. They have well-defined margins with irregular surface and they are usually of the skin color. Then comes the genital warts. इन्हें हम कंडाइलोमा एक्यूमिनाटा भी कहते हैं. And they are found in the genitals of a male or a female. Normally genital warts बहुत ज़्यादा grow करते हैं because of the constant moisture present in the genital area. Now comes the treatment of warts. So in allopathy, patients are given various creams, ointments or gels that are salicylic acid based. कुछ केसेस में पेशेंट्स को बहुत सारे टेक्निक्स लाइक क्रियोथेरेपी, कॉटराइजेशन, टिश्यू स्क्रैपिंग, फ्रीजिंग भी एडवाइस की जाती है. पेशेंट्स आर ऑल्सो एडवाइज्ड सर्जरीज लाइक इलेक्ट्रोसर्जरी और लेजर ट्रीटमेंट. और इन सारी टेक्निक्स का पेशेंट की बॉडी पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स डेवलप होने के चांसेस रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग सैलिसिलिक बेस्ड क्रीम्स कैन कॉज रेडनेस, पेन एंड स्वेलिंग एट द साइट ऑफ वॉट. पेशेंट्स कैन ऑल्सो डेवलप एलर्जिक रिएक्शंस. नॉर्मली क्रियोथेरेपी के बाद पेशेंट्स वॉट्स की साइट पे ब्लिस्टर्स डेवलप कर लेते हैं. And surgical procedures like electrosurgery and laser treatment can leave visible marks on the skin of the patient. और ये सारे techniques ultimate cause of warts, which is the wart virus या human papilloma virus, उसको kill नहीं करते. और इसी वजह से patients दोबारा उसी साइट पर या बॉडी के किसी और पार्ट पर वॉर्ट्स को डेवलप कर लेते हैं. नाउ कम्स द ट्रीटमेंट ऑफ वॉर्ट्स इन होम्योपैथी. होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो वॉर्ट्स के केसेस में बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं एंड दे हेल्प इन द कंप्लीट क्योर ऑफ द वॉर्ट्स. होम्योपैथिक मेडिसिन वॉर्ट्स के रीजन को ट्रीट करती हैं, दैट इज द वायरस. और इसी वजह से होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट किए गए वॉर्ट्स यूजुअली वापस नहीं आते. होम्योपैथिक फिजिशियन वॉर्ट्स के हर एक केस में टाइप ऑफ वॉर्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं एंड दे टेक केयर ऑफ द एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ द वॉर्ट्स लाइक इचिंग, पेन और ब्लीडिंग. होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद warts gradually dry हो जाते हैं and they shed off without leaving any
unpleasant looking marks on the skin of the patient. एक स्टडी कंडक्ट की गई थी in the year 1986 to 1988, wherein homeopathic medicines were found to be effective in 90 to 95% of the patients with warts. होम्योपैथिक मेडिसिन्स के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं एंड दे ट्रीट द वॉट्स फ्रॉम इट्स रूट. I hope you all find this video very informative and useful. Thank you so much everyone and stay safe.